Welcome students in Discovery International School and YCL YouTube channel. Welcome you all again. Myself Sunil Kumar, Botany faculty. बेटे आप इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, इसमें लिंक आते रहते हैं, वन पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ साथ उसको और आज आगे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम करते रहते हैं और हमारे यूट्यूब से हम अपलोड करते रहते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को पुश कर लेना चाहिए ताकि आप अपडेट होते रहें। हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट होते रहने के साथ साथ आप भी अपडेट होते रहेंगे, जिससे आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अपना जो स्टडी मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे, जिससे आपको ऐसे फील होगा जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा फील होगा। ओके, देन लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज ecology and ecological interspecific interaction। इकोलॉजी फर्स्ट में हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप की इसके पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, सेकंड इज नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड थर्ड इज न्यूट्रल। इसके टाइप 3 होते हैं, बट थर्ड टाइप हमने ना कोई डिस्कशन करना है, ना किसी टाइप से इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, वो मैं आपको बता। इकोलॉजी फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था बेटा इसके पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में। इन द अबाउट ऑफ पॉजिटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन आज हम नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। इंटर स्पेसिफिक इंटर action. There are 3 types of interspecific interaction found into ecosystem. First, positive interspecific interaction, ISIA. Second type, negative interspecific interaction. Third one, neutral interspecific interaction. Okay, my dearest student, we have discussed already about the positive interspecific interaction. In this video we will discuss about the negative interspecific interaction. Negative, that means मान लीजिए आप 2 स्पीसीज हैं, स्पीसीज 1 इंटरेक्ट विद द स्पीसीज सेकंड। व्हेन any 2 type of species are found in a ecological system, in ecosystem, they react with each other. First species put a specific kind of effect on species second, and second species put effect on species first. Okay, so both are
species remain in an interaction with each other and affect to each other positively, negatively. Okay, so positively we have discussed today. We will discuss about negative type of interaction, interspecific interaction. Okay, there are two type of this interaction. First, exploitation. First is exploitation and second one amensalism. Okay, first one exploitation and second one amensalism. Exploitation, what is the meaning of exploitation? In any specific or interspecific combination, when one species exploit to another species, this type of the interaction is known as exploitation. There are two type of exploitation. मतलब ये हुआ इसका कि दो स्पीसीज एक इंटरेक्शन में है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में है. एक स्पीसीज फर्स्ट स्पीसीज सेकंड पे और सेकंड स्पीसीज फर्स्ट को इफेक्ट कर दिए एनी हाउ नेगेटिव एनी हाउ, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव पढ़ रहे हैं. यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पीसीज दूसरी पर नेगेटिवली इफेक्ट डालती है. ओके, नेगेटिवली इफेक्ट डालती है. तो एक्सप्लॉइटेशन में दो टाइप की होती है, आप कुछ समझ जाएंगे. फर्स्ट इज पैरासाइटिज्म. वी कैन राइट हियर positive and negative combination. That means one species put positive effect or another put negative effect. That means one species get its important nutrition, important habitat, etc. But second has lost something by this first species. And second, predation. What is predation? Amensalism, also known as competition. Okay. So let us start. Exploitation. Exploitation. In this type of interspecific interaction, there are two species are found. One species get its important matter, important material from other species, and the second one get harmed due to presence of first species. There are two types, parasitism and predation. I would like to explain first of all parasitism. What is parasitism? It is a combination of parasite plus host plant. Parasite and host living being. Parasite is a small animal or a small plant which is
found or resides on host plant. For obtaining its required nutrition and its habitat for better survival into ecosystem. How many type of parasite? मैं आपको बता चुका हूं कि पैरासाइट की खासियत यही होती है कि ये अपने होस्ट लिविंग बींग पर रेजिडाइज करता है और इसे जो जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो इससे लेता है, अपने होस्ट लिविंग बींग से लेता है. ये होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं, दोनों ही टाइप के हो सकते हैं. इस बेसिस पर ये उसकी बॉडी पर किस तरीके से रहता है, कहाँ रहता है, क्योंकि इसकी खुद की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है और इसके होस्ट की साइज वो बड़ी होती है. होस्ट की हमेशा बड़ी साइज होती है और पैरासाइट की साइज वो बहुत ही छोटी होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म विच इज ए एक्टो पैरासाइटिज्म. Okay. Second one, endo parasitism. Ecto, I have explained about the parasitism, but ecto, what do you mean ecto? Ecto का मीनिंग क्या होता है? Ecto का मतलब होता है outside. The meaning of ecto is outside the body. Or on the body. And endo means inside. Inside the body. Okay. Ectoparasite. There are two types of ectoparasite. Ectophytoparasitism. Ectophytoparasitism, I have explained. Ecto means outside the body, phyto means plants, parasitism is a nature. Parasitism is a nature of a living being particular. Ectophytoparasitism, that means the parasite which are resides on the outside of the body of plants. We can say ectophytoparasitism. Example. Kuskura, or we can say Amar Bale. It is parasitic form of plants in a yellowish color, thread-like body structure found as a spread form on the plant. Okay. And next, Rafflesia. Rafflesia is a root parasite. Cuscuta plant or Amarbale is a stem parasite, while Rafflesia is a root parasite found on the plants as a form of plants parasite. It is the form of plants parasite on a plant host. Next, lag insect, and cotton ball worm. Cotton ball worm. Insects, कौन सा इंसेक्ट? लैक इंसेक्ट. वो इंसेक्ट जो लैक प्रोड्यूस करता है, प्लांट बॉडी पर एज ए पैरासाइट रहता है. कॉटन बॉल वर्म, ऐसा वर्म
ऐसा वर्म जो कॉटन की बोल को खराब कर देता है, उस पर पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है, कॉटन बोलवर्म कहलाता है. इट इज नोन एज द कॉटन बोलवर्म. ओके. सेकेंड, एंडोपैरासाइटिज्म. सॉरी, एक और यहां रह गया और वो है एक्टोजू पैरासाइट. एक्टोजू पैरासाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोजू पैरासाइट? और एक्टोजू पैरासाइट मीन्स ऐसे पैरासाइटिक लिविंग फॉर्म में पाए जाने वाले लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं, एक्टोजू पैरासाइट कहलाते हैं. एक्टोजू पैरासाइट कहलाते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं लीच, टिक्स, lices, leech, ticks, lices, mosquitoes. These are known as एक्टोजू पैरासाइट. लीच पानी में पाए जाने वाला एक वर्म होता है जो किसी एनिमल के, कोई भी कैटल जब पानी पीने आता है उससे तालाब में, पोंड में या उस वाटर सोर्स में, वाटर बॉडी में उस समय चिपक जाता है. लाइसेज आप जानते हैं कि ये कैटल्स की बॉडी पर पाए जाते हैं, उनकी हेयर्स में इधर उधर घूमते रहते हैं, ह्यूमन के भी होते हैं. टिक्स उनकी स्किन के साथ चिपके रहते हैं और कुछ इस प्रकार के केमिकल रिलीज करते हैं जो इनको इरिटेट करते रहते हैं और ब्लड सकिंग करते हैं. ब्लड सकिंग के द्वारा ये बहुत सारी डिजीज हैं वो स्प्रेड करते हैं. मॉस्किटोज, यू नो वेरी वेल, mosquito help to spread some disease. For example, plasmodium spraying. The spraying of plasmodium and there are some type of plasmodium help to cause malaria disease into human. Okay. Now remaining part is एंडोपैरासाइटिज्म. एंडोपैरासाइटिज्म का मीनिंग क्या है? ऐसे पैरासाइटिक मोड में पाए जाने वाले एनिमल्स जो किसी दूसरे लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. द स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्मॉल लिविंग बीइंग्स और एनिमल्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी अदर एनिमल. These are known as endoparasite. Example, tapeworm. Tapeworm is a tapeworm, wormy form parasite which is found into human intestine. It is found into human intestine. Ascaris, it is threadworm found into intestine of cattle, intestine of also in humans. Tapeworm, Ascaris, liver fluke, etc. So this is the topic of parasitism. Okay, now predation. The second point is predation. I have explained parasitism. Okay, let us start. Predation. What is predation? Predation is a combination of living being into ecosystem in which one living being is a prey and another is predators. So prey and predators is a very, very simple and very, very important part of an ecosystem. Without it, there is no any ecosystem can be run. किसी भी इकोसिस्टम में प्रेडेशन का पाया जाना बहुत जरूरी होता है. प्रेडेशन का मीनिंग होता है प्रे एंड प्रेडेट, प्रे एंड प्रेडेटर्स, दैट मीन्स शिकार एंड शिकारी. वन ऑफ देम ए and B. There are two type of living being, two type of different specific living being. A and B are found into ecosystem.
one can be hunted by another. So, hunted animal is known as prey, and hunting living being is known as predators. Okay, so prey plus predator. This combination found into predation. Into predation, negative process carry on. Prey get negatively affected while predator get positively affected. So it is negative positive combination, or we can say positive negative combination also. Positive negative combination we can say. प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी चाहिए. ओके, प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम हेल्प अस टू मेंटेन इकोसिस्टम इन ए हेल्दी इकोसिस्टम, एंड हेल्दी इकोसिस्टम हेल्प अस टू मेंटेन आवर नेचर, and a maintained fully healthy our nature will help us to maintain our all system can run very smoothly. Okay, प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम बहुत अच्छे से हमें समझना जरूरी है. ये लगता है इजी है कि भाई इस चीज को खाता है, ये खाता है, इसको पूरा मार देता है या थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है. मार दिया तो और आधा खा गया तो बचा हुआ तो आपको पता है डेड डिकेइंग मटेरियल में चेंज हो जाएगा. प्रेडेटर इसको खा लेता है और खा करके अपनी एनर्जी और रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है. ओके, इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे कि क्यों प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम, दैट मीन द प्रेडेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. व्हाई प्रेडेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड? सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर. इन एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं, एक एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से. सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1. In 1920, इस टाइम में in 1920 in Australia, in Australian continent, a prickly pear cactus introduced a prickly pear cactus introduced in 1920 in Australia. ये सीधा सीधी लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, और इसमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं और बोर्ड में भी आए हुए हैं, इसलिए अच्छे से समझ लेना. प्रिकली पियर को क्यों लाया गया था? ये सुंदर कैक्टस होता है, इज ब्यूटीफुल कैक्टस यूज टू ग्रोवन इनटू ऑस्ट्रेलियन लैंड सो दैट barren land can be vegetate, can be acquired by the very beautiful vegetation. But unluckily there was no any predator living being found into natural habitat of Australia of prickly pear cactus. यानी कि इसका प्रेडेटर वहां नहीं था नेचर में कहीं पर भी, और इसका प्रेडेटर नहीं था तो ये इतना ज्यादा फैल गया. रैपिडली ग्रोथ ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस टेक प्लेस दैट टाइम इनटू ऑस्ट्रेलिया and grow very rapidly and grow hugely in mass. Regulation and control of this was that time so hard. So predator of this prickly pear cactus
introduced by some ecologist into Australia from its previous natural habitat. It was comes under control by its a specific kind of moth. यानी कि इसको जहां से लाया गया था उसी जगह पे एक मोथ था, एक कीड़ा था, इंसेक्ट था, जो प्रिकली पियर कैक्टस को खाता था। तो प्रिकली पियर कैक्टस इसका फूड था। वहां पर इसकी अमाउंट कंट्रोल में थी, अंडर कंट्रोल चल रही थी, एक सिस्टम में थी, बैलेंस में थी, इक्विलिब्रियम में थी, और इसकी अमाउंट भी सी थी। बट इन 1922 ऑस्ट्रेलिया में इसको लाया गया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फैल गया क्योंकि इसको खाने वाला नहीं था और ये किसी भी तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं आ रहा था। और अंडर कंट्रोल नहीं आने के कारण ये बहुत ज़्यादा रेपिडली फैल गया, एक बड़े एरिया में फैल गया। और इस बड़े एरिया में फैलने के कारण उस समय इकोलॉजिस्ट थे, वो घबरा गए, अब क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा यहाँ का। इसलिए उन्होंने उस एरिया की सर्च करी, जहाँ से लेके आए तो उस जगह की सर्च करी, और सर्च करने के बाद देखा कि वहाँ एक मोथ है जो इस प्लांट को खाता है, इस कैक्टस को खाता है और इसको अंडर कंट्रोल ले आता है। इसको लाया गया और ये हिट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, रॉकी इंटरटाइडल पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका। सेकेंड एग्जांपल, पाइयासेस्टर स्टार फिश in a intertidal Pacific coastline. Pacific coast. पाइयासेस्टर स्टारफिश का प्रे होता है some small invertebrates. मान लीजिए ये वो इंटरटाइडल पैसिफिक कोस्ट जहां पर पाइयासेस्टर स्टारफिश की स्पीशीज, और ये दीज आर सम invertebrates, species A and species B, maybe species C, A, B, C, D, E, F, G, H, so many invertebrates maybe. After some time, after searching of this intertidal area, 10 species extinction of 10 species of invertebrate. How many species? 10 invertebrate species extinction take place. कारण क्या रहा, क्यों ये 10 स्पीशीज गायब हो गई, एक्सिट हो गई, इस एनवायरमेंट्स में फिनिश हो गई? उसका कारण ये रहा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। येलोविश कलर में कोई एक स्पीशीज मान सकते हैं, बड़ी व्हाइट लाइन से आप एक स्पीशीज मान सकते हैं, छोटे डॉटेड पॉइंट से तीसरी मान सकते हैं, चौथी, पांचवी, छठी, 8, 10, 15, 20 हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन इनका यदि प्रेडेटर नहीं है,
इन प्रेडेटर्स को हटा लिया जाए। ये जो प्रेडेटर्स हैं पाइसेस्टर स्टारफिश, इनको हटा लिया जाए। ड्यू टू रिमूवल ऑफ दीज स्टारफिश फ्रॉम दिस इंटरटाइडल पैसिफिक कोस्ट, more than 10 invertebrate species extinction took place that time, गायब हो गई। क्यों? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपस में कंपटीशन के कारण, फूड लॉस के कारण ये एक्सटिंक्ट हो गई। लेट्स गो, कम बैक विद आवर previous topic. I have complete exploitation, parasitism and predation. Amensalism. What is amensalism? मैंने यहां लिखा हुआ भी है कंपटीशन। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी करी है कि कंपटीशन क्या है। स्ट्रगलिंग बिटवीन टू और मोर देन टू स्पीसीज फॉर देयर फूड, न्यूट्रिशन, हैबिटाट और देयर रिप्रोडक्शन और फॉर देयर सर्वाइवल in a specific area is known as competition. It is also known as amensalism. Due to competition, a very dangerous condition can be occur in a specific area, and competition cause a great loss between related two species or non-related two species in our ecosystem. So competition is a very harmful things which can be found in our system. Okay, let us start. दो चीजें बेटा इससे पूछी जाती है। फर्स्ट, गॉसेज एक्सक्लूजन, competition, principle. गॉसेज, एक्सक्लूजन, कंपटीशन, प्रिंसिपल। यानी कि गॉसेज ने क्या बताया था? गॉसेज ने बताया था कि दो स्पीशीज होती है, स्पीशीज फर्स्ट एंड स्पीशीज सेकेंड। दोनों का यदि फूड सोर्स सेम है, मैंने यहां कॉमन कर दिया, दोनों का स्पीशीज फर्स्ट एंड सेकेंड फूड सेम है। यदि सेम फूड सोर्स है, both species can't be survive in a same environmental condition. That means coexistence of these species can't be take place. Any one of them has to extinct from this environment, and which will get extinct weaker, and dominant species will remain for a long time. Okay, and the second point, पहला तो हो गया गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह दो, चाहे इसको गॉसेज कॉम्पिटिशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह दो। सेकंड, मैकआर्थर प्रिंसिपल, मैकआर्थर्स प्रिंसिपल, और वी कैन से द वार्बलर of MacArthur. The warbler of MacArthur, warbler are some small sparrow-like structure found into Galapagos Island group. ये वही गैलापेगोस है जहां पर डार्विनिज्म दिया गया था। गैलापेगोस आइलैंड में
उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से एक ट्री पर, जैसे इस ट्री की it is the trunk of tree and it is just a different part, branches, origin of branches take place from this part of trunk. आप यहां समझ सकते हैं स्पीशीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी ओरिजिनेशन टेक प्लेस फ्रॉम सेम। यहां पर इसको सेम इसलिए किया गया क्योंकि ये फूड रिसोर्स है, यानी कि ये 1 2 3 4 टाइप ऑफ स्पीशीज एक साथ पाई जाती हैं, और यहां इन 4 टाइप की स्पीशीज में कंपटीशन है सेम फूड रिसोर्स के कारण। डेफिनेटली coexistence of these species can't be maintained at a same time in a same environmental condition. Okay? तो ये सर्वाइव कैसे कर सकती है? ये सर्वाइव कब कर सकती है? जब इनका फूड रिसोर्स अल्टरनेशन चेंज हो जाए। एक का फूड रिसोर्स डायरेक्शन ये हो जाए, दूसरी की ये डायरेक्शन हो जाए, तीसरी की ये हो जाए और चौथी की ये हो जाए। ड्यू टू alternation of their food resources, their requirement, their needs, they can survive with each other. Okay, this is known as Warbler's principle of MacArthur. Okay, इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, और वो इकोसिस्टम में थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अगले वीडियो में ताकि उसको थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से अच्छे से अंडरस्टूड हो सके। थोड़ा सा हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, 2-4 मिनट आप अच्छे से ध्यान दें। इकोसिस्टम, what is ecosystem? Ecosystem is equals to biotic plus abiotic. It is the combination of ecosystem. You can understand ecosystem, a part of our ecological system in which combination of biotic component and abiotic components is found, known as ecosystem. बिल्कुल समझ गए होंगे आप। It may be a very large ecosystem. It may be a very large, for example, complete Earth, very large. Our Earth, smallest water droplet. बारिश की एक बूंद, रेन वाटर is smallest ecosystem. Rain water is smallest ecosystem and very large ecosystem is Earth. ओके, थोड़ा सा ये कुछ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हो, इसके बारे में डिस्कशन करें। अगले वीडियो में हम
इकोसिस्टम ही पढ़ेंगे और स्मूथली पढ़ेंगे, एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब our channel and push the bell icon for remaining yourself update with our new videos. Okay, bye.